Friends, many of you were messaging me to post something related to GS, technical papers, some previous year questions paper related to network and digital electronics I have already uploaded, and analog electronics I'll load in the meantime. But as far as your new syllabus is concerned, I thought that I should give you an overview and an approach of how you should approach your paper so that you get selected at least at the pre-stage of your exam. So today we'll see how to go about as far as your aptitude paper is concerned. So ये revised syllabus है paper 1 के लिए, as UPSC have uploaded it on their website. I have divided these topics into 2 categories. I'll let you know why I had done so. But first of all, let us go through the topics. First topic is current issues of national and international importance relating to social, economic and industrial development. One part I have uploaded, second part I will upload after this video. Second is logical reasoning and analytical ability. ये तो मतलब बड़ा ही जनरल सा टॉपिक है और I don't think that many of you, maximum of you will be facing any problem in solving these type of questions. Simple reasoning and analytical ability. Engineering, mathematics and numerical analysis. This is already you are doing it for your technical portion, so nothing new you have to do in this. Ethics and values in engineering profession. Okay, 2 or 3 videos I have uploaded, and maximum questions you will be able to solve through those videos, and if you apply your mind, a little bit of your mind and practical knowledge during your exam. Basics of energy and environment, conservation, environmental pollution and so on. Environmental impact assessment is also there. Environmental impact assessment का वीडियो तो मैंने फुल फ्लैश डाल दिया है. बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपसे कहा था इग्नू का मटेरियल डाउनलोड कर दीजिए, और कई लोगों को मैंने उसमें बताया भी है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. पूरे नहीं पढ़ने हैं, देयर आर 4-5 चैप्टर्स विच विल बी इनफ. उसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस का वीडियो मैंने डाल रखा है. देन कम्स बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका भी एक पार्ट डाल रखा है. सेकेंड पार्ट आई विल अपलोड वेरी शॉर्टली. Then is information and communication technology based tools and their applications in engineering such as networking, e-governance, technology based education. I'll upload a video on this right after this video. Now, ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 topics. Now there are some other topics also. Why I have put these topics in this other category, I'll let you know. This is general principles of design, drawing, importance of safety. Then standards and quality practices in production, construction, maintenance and services. Basics of material science and engineering. Okay. Now, आपके एप्टीट्यूड पेपर में मेरी, अगर मैं एग्ज़ाम देता, इस बार एग्ज़ाम दे रहा होता, तो मेरी अप्रोच ये रहती कि ये जो 7 टॉपिक्स हैं ऊपर के, these 7 टॉपिक्स, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट. मैक्सिमम क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट, बिकॉज आप अपना थोड़ा सा माइंड लगा के, एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके इन 7 टॉपिक्स के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, और इस पे मटेरियल भी आपको नेट पे या इधर उधर से मेरे वीडियोस में से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा. एज फार एज दीज टॉपिक्स आर कंसर्न, ये हर टॉपिक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है. ठीक है, अगर आपने मॉडल टेस्ट पेपर जो यूपीएससी ने भी अपलोड किया हुआ है वो भी देखा होगा, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अगर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ दीज इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट. अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. जैसे बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग. मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वही पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बट दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल साइंस. मटेरियल साइंस इज इन इटसेल्फ अ वेरी vast topic, including the latest developments like metamaterials, nanotubes, okay, कार्बन ग्रेफाइट ट्यूब्स. देयर आर मतलब इसमें डेवलपमेंट्स होते ही रहते हैं, तो इसको आप पढ़ते ही रहेंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे टॉपिक. ये 7 टॉपिक्स काफ़ी कॉमन टाइप के टॉपिक्स हैं और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट. अगर एलिमिनेशन टेक्निक से 1 या 2 ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट हो रहे हैं तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, छोड़ के मत आइएगा. इन टॉपिक्स में क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि कुछ पता ही नहीं है, यू आर सरप्राइज्ड बाय द क्वेश्चन कि ये क्या क्वेश्चन एकदम पूछ लिया है, डोंट अटेम्प्ट इट. ओके, डोंट अटेम्प्ट क्वेश्चन. अगर आपको लगता है कि आपको मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है,
इन टॉपिक्स को, सो डोंट अटेम्प्ट इट, इट विल बी सेफ। माई स्ट्रेटेजी विल बी, ये एप्टीट्यूड का पेपर आपका 200 मार्क्स का है, टेक्निकल पोर्शन आपका 300 मार्क्स का है। दैट मीन्स आउट ऑफ 500, 300 इज योर टेक्निकल पेपर, 60%। टेक्निकल पेपर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, मतलब 85 to 90% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है टेक्निकल पेपर में। यू शुड अटेम्प्ट इट, और एनी सीरियस कैंडिडेट विल डू इट इफ हिज प्रिपरेशन लेवल इज गुड। ठीक है, 80-90% पेपर आपको टेक्निकल पोर्शन में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक वाइज आप पहले पूरा पेपर देख जाइएगा। पूरा पेपर जब आप देख लेंगे तो एनी सीरियस कैंडिडेट विल एस्टिमेट कि वेदर पेपर इज टफ, और हालांकि ये दिस इज अ न्यू पेपर, सो दिस ईयर दिस पेपर विल बी टफ फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो कोई भी सीरियस कैंडिडेट होगा तो वो समझ जाएगा कि टफ है कि ईजी है कि बहुत ईजी है, क्या है, एंड देन टेक अ कॉल राइट एट दैट मोमेंट। लेकिन इन टॉपिक्स के क्वेश्चन जो हैं ये कुछ एस्टिमेट किए जा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में फिर वही बात, अगर वही जो आप पढ़ते हैं जैसे पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, क्यूरी टेम्परेचर, इन सब पे क्वेश्चन आ गया तो वो बोनस हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रखा है। अगर कुछ अलग से कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो मत अटेम्प्ट कीजिएगा, इट विल बी सेफ। सो अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन एप्टीट्यूड पेपर एंड अटेम्प्ट, ट्राई टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन योर टेक्निकल पेपर। एप्टीट्यूड पेपर में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड नॉट अटेम्प्ट, यू शुड अटेम्प्ट। इन टॉपिक्स के तो 90% 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, बट डोंट प्लीज अवॉइड नेगेटिव मार्किंग एज फार एज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इज कंसर्न। ठीक है, बिकॉज पेपर पहले होगा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का, फिर टेक्निकल पेपर होगा, तो नेगेटिव मार्किंग करके अपने आप को पहले ही आउट ना कर लीजिएगा, मतलब पूरे रेस से बाहर ना हो जाइएगा कि अरे ये तो पेपर बहुत आसान सेट हुआ है और इस बार तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो आई शुड अटेम्प्ट 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सबके लिए टफ है, बिकॉज नो बडी नोज वॉट काइंड ऑफ पेपर इज गोइंग टू कम, इसलिए सबके लिए टफ है। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बेफिक्र होके जाइए, डोंट टेक एनी अनड्यू टेंशन, डोंट स्पॉयल योर टेक्निकल पेपर बाई मतलब ओवर एम्फसाइजिंग ऑन योर एप्टीट्यूड पेपर। आई एम टेलिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। इनमें से जो 7 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, 6 टॉपिक्स के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, 5 टॉपिक्स के। 6th ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर का वीडियो इसके बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी मैं ट्राई करूँगा कि इन द मीन टाइम अपलोड कर दूँ, बट अगेन डोंट इंडल्ज इन नेगेटिव मार्किंग इन एप्टीट्यूड पेपर and try to score maximum as you can in technical paper. Okay, so this will be the strategy. मेरी strategy तो है यही होती है अगर मैं इस साल एग्जाम देता with the change pattern, और with the change pattern जिस साल एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है उस साल जितने लोग एग्जाम देते हैं उनको एडवांटेज होता है। कई कोचिंग वाले, कई लोग आपको बताएंगे कि इस साल मत दो, एप्टीट्यूड पेपर देख लो, जस्ट चेक द एप्टीट्यूड पेपर एंड देन गिव द नेक्स्ट ईयर। आई विल नॉट एडवाइज सो। ठीक है, जिस साल इंट्रोड्यूस होता है चेंज पैटर्न उस साल एडवांटेज होता है, सो यू शुड गो फॉर इट। इफ़ योर टेक्निकल पोर्शन इज कंप्लीट एंड यू आर सेफ एज फार एज दीज टॉपिक्स आर कंसर्न इन योर एप्टीट्यूड पेपर, यू शुड गो फॉर इट दिस ईयर इटसेल्फ। ओके, सो दैट वाज ऑल। ये तो इंट्रो मैंने दे दिया ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि आपको अप्रोच कैसे करना है पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ICT का पेपर जो है, ICT का वीडियो इसके बाद मैं बनाने जा रहा हूँ, फॉलो हो रहा है, सो डू चेक आउट ऑफ दैट। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टाइम कम बचा है, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है। मेरी अप्रोच यही होती है, आप अब कैसे करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।